जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। मैंने आईआईटी से बीटेक किया है। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अभी जीओसी पढ़ रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। एंड हम लोग जीओसी में लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं बच्चों। And there are some thumb rules to make this class more effective, interactive, and you all are following very disciplined way. Okay, and these all facilities are facilitated by no other than very responsible coaching institutes, L1 Coaching Aspire, L1 Aspire app, and here we have all sorts of facilities, complete package for you. And if you do understand the concepts, it just help you to become scientific. You can convey to your brother, sister, schoolmate, classmate, and you should do it, because quality education is right to all students. Okay, so for that they have just to search L1 Aspire on Google, and they have to just download it from App Store or Play Store, and finally they have to log in registration according to their batches. Okay, now in previous class we have seen shape and geometry, it's pronounced as geometry, but he has written it's a METRY. Okay, shape and geometry, Bend's rule and maximum number of collinear atoms. Do you remember Bend's rule? कितना इंटरेस्टिंग था ना बच्चों, वाह वंडरफुल। Bend's rule, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा। ऐसा क्यों और इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। एंड लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिनियर एटम्स, उस बिहाफ पे मैंने एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग मासूम सा क्विज बनाया हुआ है। इट विल जस्ट स्टार्ट ब्यूटीफुली टुडेज क्लास, सो यू जस्ट सॉल्व इट। यू हैव टू फाइंड द calculate maximum number of collinear atoms in this molecule. Calculate maximum number of collinear atoms in this molecule, and time is 60 seconds. It's a very easy, I believe all of you will do it. So time starts now. Come on everyone. Maximum number of collinear atoms. Yeah, अरे वाह, आदित्य यादव, प्रशांत कुमार, है ना, यू हैव गिवन द आंसर इन जस्ट 5 seconds. वाओ यार, ग्रेट। कम ऑन एवरीवन, थिंक योर सेल्फ एंड देन प्रोड्यूस योर आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिनियर एटम्स। अरे वाह, ये तो आंसर की बाढ़ आ गई भाई, है ना। हैवी रेन, भारी। कम ऑन, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 seconds. Now time is 5 seconds. 4, 3, 2 and 1. So congratulations to all of you for placing your answers here in within time interval. That's great. You guys are very, very disciplined and dedicated for your studies. That's a great one. Now let's see. Let's try it. गलत होना सही होना, it's just a part of the game. Okay. C2H, we all know C2H. बोलो बच्चों। Yes, गाना गाते हुए बात कर रहा हम लोगों को। C2H, then it's a triple bond, then C plus. Okay. This one is C plus, then double bond carbon, then C triple bond N. Okay, now let's just count the number of continuous sp hybrid atom. Sp hybrid, sp hybrid, sp hybrid, sp hybrid, sp hybrid. Okay, but this one is sp2 hybrid. Although these three are sp hybrid, but these three are not in continuation with this one. These are 1, 2, 3, 4, 5. So here we have 5 atoms continuous sp hybrid, and in this side we have 3 atoms continuous sp hybrid. But we are in we are searching for number of
continuous sp hybrid atoms. So here we have just 5, 1 2 3 4 5, and this sp hybrid atoms which are present at the extreme positions are in direct contact with this atom as well as this atom. So here we have 5 atoms are sp hybrid plus 2 atoms are in direct contact with them, so they must be in the line. So answer will be 7, and you all have given the same answer. Wonderful, amazing, beautiful, बहुत अच्छे। और ये क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है, जानते क्यों? उनको ये आइडिया कई बार बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो आप लोगों को साइंटिफिक बनाने की बात किया हूँ। वाओ, तो फिर मैं क्या कहने वाला हूँ आपसे? मैं आपको कहने वाला हूँ कि क्या आप नहीं सोचोगे, ये आपको मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ, आप क्या नहीं सोचोगे क्या आप नहीं सोचोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स कैसे निकाला जाए? कोप्लेनर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो आप घर पे अपने से प्लान करना बच्चों, और मैं अगली क्लास में शायद क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स कैसे होंगे वो आप ट्राई करना। राइट बच्चों, क्या लिखा है? यस सर, लास्ट कार्बन में 6 बॉन्ड फॉर्म हुआ है कार्बन से। हाउ इट इज लास्ट? ओ सॉरी, ये गलत हो गया। यस ग्रेट, आप सही बोल रहे हो, गुड यार, ये दोस्त ने सही बोला, यहाँ पे ये गलत हो गया, बट स्टिल आवर आंसर विल बी सेम। ये गलत स्ट्रक्चर हो गया, इट्स विल बी CN नॉट C ट्रिपल बॉन्ड CN। ओके ओके बच्चों, ये CN होगा। राइट, यू आर राइट, बट आंसर विल बी सेम। ओके, सो आप लोग क्या करना बच्चों? रिमझिम ने बोला है क्या? रिमझिम बर्नवाल, ओ इसको CBI में भेजते हैं हम लोग, है ना। सो बच्चों आप नेक्स्ट क्लास में सोच के आना, एंड आई विल गिव यू क्वेश्चन, पहली दूंगा आपको मैं सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स। नोट कर लीजिएगा, दिस इज होमवर्क, आपको खुद से सोचना है। ओके, नाउ चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। फटाफट कॉपी पेन निकालो, नोट करना शुरू करो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको पढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल रहा हूँ, साइंटिफिक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल तरीका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मुझसे कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री के वो सर ने बोला, उन सर ने बोला कि केमिस्ट्री रटो रटो रटो। मैं कहता हूँ नहीं, केमिस्ट्री को समझो, केमिस्ट्री को अपना बनाओ। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आपको मैं कुछ खिलाऊँ, बहुत बढ़िया खाना खिलाऊँ, और आप उल्टी कर दो, पलटी कर दो, ओमिट कर दो, तो क्या वो खाना आपके शरीर में लगेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी ने उस खाने को एक्सेप्ट नहीं किया ना, एक्सेप्ट ही नहीं किया। रीजंस माइट बी न्यूमरस, बट आपके बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे आपका बॉडी फिजिकली खाने को ओमिट कर रहा है ना, वैसे हमारा दिमाग भी चीज़ों को ओमिट कर देता है, उल्टी कर देता है। किस चीज़ को उल्टी करता है? जो चीज़ उसको समझ में नहीं आती है। जैसे मैं भी गया था बहुत लास्ट ईयर, थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा फतिंगा फ्राई, कॉकरोच फ्राई, यू नो डिफरेंट आइटम्स वर देयर। मैं तो नहीं खा सकता, और इनफैक्ट खाना छोड़ो, हो सकता है कोई मुझे ज़बरदस्ती खिलाए तो मुझे उल्टी भी हो जाए, बिकॉज आई एम नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन, माई बॉडी आई एम मेंटली एंड फिजिकली नॉट ट्यून्ड विद दैट। राइट, सो अगर कोई चीज़ आपका बॉडी, आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सबको उल्टी होता है। दुनिया के बहुत सारे लोग खाते ही हैं। कौन खाता है? जिसको वो बात समझ में आती है। वैसे ही आपके दिमाग को अगर लॉजिक समझ में आ जाए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। और कहो सर फिर भी याद तो करनी पड़ेंगी, तब तो दुनिया में सब कुछ याद करते हो, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, गांव का नाम, चाचा का नाम, चाची का नाम, दोस्तों के नाम, स्कूल का नाम, सब कुछ याद करते हो। मैथ्स में फॉर्मूले, फिजिक्स में फॉर्मूले, न्यूटन्स ला याद करते हो, बायोलॉजी में याद करते हो, तो सब कुछ याद ही तो कर रहे हैं। नहीं, दोनों में अंतर है। एक में हम रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें, जैसे जो लौकी मैंने खाया और लौकी मेरे बॉडी में गई, डाइजेस्ट होके मेरे बॉडी का पार्ट बन गया, तो अब वो लौकी मेरे बॉडी का हिस्सा हो गया, मसल्स बन गया, मेरे कान में आ गया, नाक में आ गया, दिमाग में। लौकी कुछ कंपोनेंट, उससे जो भी चीज़ें निकलती हैं जहाँ तहाँ सेटल हो गई। तो जो लौकी बाहर था, जो मेरी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, वो मेरे बॉडी का हिस्सा है। सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे वो कॉन्सेप्ट आपका हिस्सा हो जाएगा, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। तो बच्चों, हम लोग जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे,
वी विल ट्राई टू बिल्ड अ लॉजिक। तो जो आपको लॉजिकली चीज़ें समझ में आ जाती है ना, वो आपका दिमाग पचा लेता है, वो उसको उल्टी नहीं करता। जो खाना आपका मन कहता है सही है, इसको खाना चाहिए, खा लेगा, उल्टी नहीं करेगा, तो वो आपका हिस्सा हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए कम ऑन। सो नाउ मैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट नोट करिए बच्चों, फटाफट नोट करिए। मैंने क्या बताया, एसिड और बेस के सारे रिएक्शंस, एसिड एंड बेस एसिड और बेस के सारे रिएक्शंस आर एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। एसिड और बेस के सारे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में होते हैं। नोट कर लिया आपने। एसिड जैसे देखो, ये कोई एसिड है HA, ये इक्विलिब्रियम में होगा और टूट के बनेगा H प्लस प्लस A माइनस। वैसे ही बेस के लिए होता है बच्चों। तो एसिड और, अच्छा यहाँ मैं समझा लेता हूँ आपको पहले। एसिड और बेस के सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं। यहाँ जगह थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब मैं अगले स्लाइड पे आता हूँ। तो जैसे अगर कोई एसिड है HA और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इट शुड बी लाइक H प्लस एंड A माइनस। ओके, ये इक्विलिब्रियम में है। तो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? स्ट्रॉन्गर एसिड हम उसको बोलते हैं जो एट इक्विलिब्रियम, स्ट्रॉन्गर एसिड उसको बोलेंगे जो एट इक्विलिब्रियम H प्लस ज़्यादा दे। तो कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट इक्विलिब्रियम। जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया, उस समय जो ज़्यादा H प्लस देगा, जल्दी नहीं, ज़्यादा, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम इन अ गिवन सॉल्यूशन। अगर H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। नाउ अब H प्लस कितना देता है, इस बात को जानने के लिए हम लोगों ने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका नाम है Ka डिफाइंड किया है। और इसको इस तरह से डिफाइंड किया बच्चों कि इसको इस तरह से डिफाइंड किया है, ये हम लोगों ने डिफाइंड किया है। हम लोगों मतलब वैज्ञानिकों ने डिफाइंड किया है इन अ वे सच दैट मोर द वैल्यू ऑफ Ka मीन्स हाइयर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय साइंटिस्ट इन सच अ फैशन। सो वी शुड से एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Ka। Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो H प्लस ज़्यादा होगा एंड देन एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। Ka इज इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एसिड। ये सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करता है। Ka इज फंक्शन ऑफ दो चीज़ के ऊपर, एक कौन सा एसिड का है और टेम्परेचर। फॉर अ गिवन एसिड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मेरी हर एक बात को बहुत ही तन्मयता सुनना। मैंने क्या बोला, जो बात आपके दिमाग को समझ में आ जाएगा वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपका अपना हो जाएगा। बट जब नहीं समझ में आएगा तो बार बार उसको रटोगे, आपका दिमाग उल्टी करता रहेगा, आप रटते रहोगे और उल्टी करता रहेगा। बाद में इरिटेशन भी होने लगती है। एक ही चीज़ को 100 बार पढ़ो ना और दिमाग में ना आए तो ना आए, मतलब आपने डाला ही कब, आप तो रट रहे हो। सो केमिस्ट्री में, इवन हिस्ट्री में, जियोग्राफी में हर चीज़ समझना है बच्चों। सो प्लीज़ फोकस हियर। सो मैंने आपको क्या बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये Ka की वैल्यू पर डिपेंड करता है और Ka सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ के ऊपर। एक, आप किस एसिड की बात कर रहे हो और दूसरा वो किस टेम्परेचर में बात कर रहे हो। अगर हम लोग पर्टिकुलर एसिड की बात करें बच्चों, इफ़ यू आर टॉकिंग फॉर एन एसिड देन इट जस्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट अदरवाइज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। सो कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात कर रहे हैं हम लोग, सपोज वी आर टॉकिंग एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द एसिड, नेचर ऑफ एसिड। सो बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो, दिमाग में डाल लो। आपका दिमाग एक्सेप्ट करने वाला है, रेडी हो गया, यस। वो ये बच्चों कि अगर हमको Ka की वैल्यू दे दिया है, अगर हमको Ka की वैल्यू दे दिया है तो हमें अब ये नहीं देखना है कि क्या, क्यों, कैसे। अगर इसके Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ही होगा, किसी भी रीजन से, हाइब्रिडाइजेशन के रीजन से, बॉन्ड लेंथ के रीजन से, रेजोनेंस की वजह से,
लोन पेयर के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई भी कारण हो, भाई अब तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो और उससे कहो सर आपने MBBS किया है क्या, तुम्हें बिना मारे नहीं छोड़ेगा वो बिना मारे तो नहीं छोड़ेगा। मतलब ये कि अगर डॉक्टर हैं और अच्छे डॉक्टर हैं तो बाकी सब प्रोसेस पूरा तो हुआ ही होगा। वैसे ही अगर आपको KA की वैल्यू दे दिया है तो बच्चा लोग कुछ मत जानने की कोशिश करो, जितना KA की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ये एसिड के सारे गुणों को मिला के आया है, ठीक है। अगर कोई काम रिजल्ट में आ रहा है तो बस अच्छा हो रहा होगा, तभी तो रिजल्ट में आ रहा है। अब क्यों हो रहा है, अब उसके एनालिसिस में डीप में जाओ, दैट्स अनदर पार्ट। ओके, बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आते जाए तो आपको यस यस बोलते रहना है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। एसिड और बेस के सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो H+ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा मतलब उससे KA की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। और KA की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक फंक्शन है। थैंक यू बच्चों, आप लोग समझ में आ रहा है, जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों देखो, एक KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। अगर इस एसिड के लिए KA मैं बोल रहा हूँ, अगर ये एसिड है तो A- एक बेस होगा, इसको KB बोलेंगे। ये सब बातें आपने 11th में पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम में, ओके। अगर ये एसिड है तो कितना तगड़ा एसिड है, इसके लिए KA है, और ये उसका कंजुगेट बेस है। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस, एसिड बेस। कंजुगेट मतलब पड़ोसी, इसमें से H+ निकालोगे तो ये बेस बनेगा और इसमें H+ जोड़ोगे तो एसिड बनेगा। दीज आर कंजुगेट एसिड बेस, राइट। सो अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KA है तो फॉर दिस इट मस्ट बी KB। तो KA इंटू KB इज इक्वल टू KW फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। फॉर कंजुगेट मतलब पड़ोसी, कंजुगेट मतलब पड़ोसी एसिड बेस पेयर। कई लोग ये भी बात कम समझते हैं, ये समझते हैं कि इसी एसिड का KA है और इसी एसिड का KB है। अरे नहीं पगला, थैंक यू बच्चों, आप लोग समझ में आ रहा है, मेरा हौसला अफजाई हो रहा है, गुड। तो अगर इसका KA होगा तो इससे कंजुगेट बेस का KB होगा, और KA इंटू KB KW है, और KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻14 होता है। मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो KA ज़्यादा होगा तो KB की वैल्यू कम होगी। तो स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा जिसके KA की वैल्यू ज़्यादा है, और भी शुड से जिसे कंजुगेट बेस के KB की वैल्यू कम होगी। ओके, ये सब नोट करते जाना है। मैंने ये भी आपको बता दिया, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मैंने कहा फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कहेंगे सर कैसे जाने कंजुगेट एसिड बेस पेयर? मैंने कहा अगर A- कोई बेस है तो उसमें H+ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, HA। यह उसका कंजुगेट एसिड हो गया। जैसे RO- अगर कोई बेस है, कंजुगेट एसिड होगा ROH। इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है, इस बेस का ये कंजुगेट एसिड है, पड़ोसी, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ओके, सो नाउ आपने ये सब नोट कर लिया होगा और मुझे भरोसा है कि 11th में पढ़ा भी होगा। चलिए बच्चों, तो मैं आपको ये बताने वाला था, एक केमिस्ट्री के महान विद्वान, उनका नाम सोरेनसन। इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसको बोलते हैं P फंक्शन, Px। और Px का वैल्यू बच्चों होता है -log x। Px इज इक्वल टू -log x। आपको पता होगा, आप अगर मैथ्स के विद्यार्थी होगे तो, कि log x जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसा एक ऐसा ग्राफ बच्चों log x का। ये 0 कहाँ होता है, log 0 कहाँ होता है, 1 पे 0 हो जाता है। तो ये Px जो है बच्चों, इट इज़ -log x। Px इज -log x, मतलब इसका उल्टा करना है। उल्टा कर देते हैं हम लोग, ये दिस वन इज, जो ये मैं इसको मिटा देता हूँ अब। हाँ, तो ये जो बच्चों है, ये ग्राफ हुआ Px का, मतलब -log x का। देखो आप ध्यान से देखो बच्चों, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, Px की वैल्यू घट रही है। मतलब कैसा फंक्शन हुआ ये,
डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब किसी खाना खिलाओ और दुबला हो जाए, किसी को खाना खिलाओ और दुबला हो जाए। कह रही क्या हुआ भाई कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन में देखो घट रहा है, एक्स की वैल्यू घटेगी तो फंक्शन में बढ़ेगा। कौन सी? इससे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये किसके लिए बच्चों? पी एक्स के लिए। यहाँ एक्स में जो रखोगे वो आ जाएगा पी एच, एच प्लस रख दिया, पी ओ एच, ओ एच माइनस रख दिया, पी के ए, पी के बी, है ना। सो बच्चों ये उल्टा कर देता है, जिसके पी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो रियली में वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ आते हैं हम लोग, ये सब फटाफट नोट करते जाना है बच्चों। ओके, तो मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा जिससे के ए की वैल्यू ये सब एच प्लस ज़्यादा हो, के ए ज़्यादा हो, के बी कम हो, या ओ एच माइनस कम हो। जिस सॉल्यूशन में ओ एच माइनस कम होगा उसमें एच प्लस ज़्यादा होगा। अब यहीं से आ जाओ, पी पे आते हैं। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इज एच प्लस ज़्यादा होगा तो पी एच कम होगा। जिस सॉल्यूशन के पी एच की वैल्यू कम होगी, कोई पूछे पी एच क्या है, बस यार पी फंक्शन है, एच लगा देना है, माइनस लॉग एच प्लस। एच प्लस होता है इन शॉर्ट, उसको एच बोलते हैं। तो जिस सोल्यूशन के पीएच की वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब यहाँ आ जाओ, के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी के ए की वैल्यू कम हो जाएगी, 1/पी के बी कम होगा तो पी के बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ओ एच माइनस कम होगा तो पी ओ एच की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये बातें मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्स में कई बार डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछा जाता, पीएच की वैल्यू पूछ लेगा, पीके की वैल्यू पूछ लेगा, पीओएच की वैल्यू पूछ लेगा। बस हमको याद हो गया, हम लोग समझ गए। क्या समझ गए भाई? हम लोग समझ गए कि स्ट्रॉन्गर एसिड वो है जो H प्लस ज़्यादा दे। H प्लस ज़्यादा कब देगा? जब के की वैल्यू ज़्यादा होगी। के ज़्यादा होगी मतलब के बी की वैल्यू कम होगी, के बी कम होगा मतलब OH माइनस कम होगा। ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। अब अगर इसी को पी की भाषा में बोलना हो, इसी को हम लोग पी की भाषा में बोला, क्या बोलेंगे? H प्लस ज़्यादा हो मतलब पीएच की वैल्यू कम होगी, के ज़्यादा हो मतलब पी के ए की वैल्यू कम होगी, के बी कम हो मतलब पी के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ओ एच माइनस कम हो मतलब पी ओ एच की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो इन क्वेश्चन यू माइट बी आस्क्ड, ये प्रायोरिटी वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है, एक ही चीज़ को कहने की बात की जा रही है ना बेटा। ये रज़ा, हसनैन रज़ा ना बेटा, इसमें प्रायोरिटी कोई बात ही नहीं है, वो एक ही चीज़ को पूछा जा रहा है अलग अलग तरीक़ों से, है ना। प्रायोरिटी की बात तब करते हैं जब कोई कंपटीशन होता है। ओके, तो यहाँ तो एक ही चीज़ को हम लोग 4 नाम से बुला रहे हैं। जैसे कोई बच्चा, उसका स्कूल का नाम राहुल है, घर का नाम उसका लड्डू है, दोस्त उसको कुछ और मोती कहते हैं, तो कहेंगे मोती बढ़िया है कि लड्डू बढ़िया है कि राहुल, तीनों एक ही व्यक्ति है भाई, है ना। ऐसे ही बेटा, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ इन 4 ऑप्शन दिया, इन चारों में सबसे ज़्यादा पीके की वैल्यू किसकी होगी? फाइंड द मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट पीके वैल्यू। इट मीन्स द क्वेश्चन इज अबाउट द लिस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल। एक ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। वाह वाह वाह। अब हम लोग बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। बोलो यस नो, बोलो बोलो भाई, समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, तो बता दोगे ना कि स्ट्रॉन्ग, बताओ इसमें सबसे ज़्यादा पीओएच किसका है? तो पीओएच किसका है मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है। पीओएच बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब हम लोग बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। वाह। अब चलिए मैं आपके लिए कुछ एसिड्स का टेबल लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा डिस्कस करूँ, मज़ेदार बातें किया जाए, कुछ हंसी के फुहारे, कुछ इंटरटेनमेंट किया जाए। जब मैंने कहा ना कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट से जोड़ना चाहता हूँ, मैं वैल्यूज़ लेके आया हूँ ताकि आप कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसका इतना होता है। सी पहले बात तो आप ये समझो, कुछ आगे बढ़ जाओ। ये देखो, ये मैंने NCERT से उठाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके यहाँ चैप्टर है, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। अगर किसी के पीके की वैल्यू 1 से कम है, पहले थोड़ा आइडिया उसको महसूस करो और कनेक्ट हो जाओ। अरे यार ऐसा है क्या? अगर किसी के पीके की वैल्यू 1 से कम होगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। तो जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? वाह, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, आई लव यू ऑल, फीलिंग कॉन्फिडेंट।
आप लोग पढ़ाते हो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है। सो pKa की वैल्यू 1 से कम होगी तो एसिड क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये NCERT में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दिया हुआ है। 1 से 5 के बीच में होगा तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, 5 से 15 के बीच में होगा तो वीक एसिड, और 15 से ज़्यादा होगा तो एक्सट्रीमली वीक एसिड। सो दिस इज़ द कैटेगरी। और एक बात, छोटी बात और बता दूँ आपको मैं, एक छोटी छोटी बात और बता दूँ। अगर दो मान लो एक एसिड है HA और दूसरा एसिड है HB, इन दोनों में अगर इन दोनों के pKa की वैल्यू में अंतर, pKa की वैल्यू में अंतर मान लो 2 का है, तो इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ में 10 की पावर 2 का अंतर होगा, मतलब 100 गुने का अंतर होगा। ठीक है, बिकॉज pKa इज -log Ka, तो log में आया है वो, मतलब log 100 की वैल्यू 2 होती है, पता है ना आपको, तो 100 होगा 100 होगा, देन इट कम्स आउट टू बी 2। सो pKa इज -log Ka। सो अगर दो एसिड के pKa में 2 का डिफरेंस है, सो उनके Ka की वैल्यू में 100 का डिफरेंस होगा, उनके एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपका दिमाग इसको पचा ले, उल्टी ना करके अच्छा इतना अंतर हो गया क्या, ओ तो यू कैन ईजिली यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कितना स्ट्रॉन्गर या वीकर एसिड है। ठीक है, चलिए ये बातें आपने नोट कर लिया होगा। pK 1 से कम है, देन स्ट्रॉन्ग एसिड 1 से 5 के बीच में है। अच्छा 5 के इंटरवल में है क्या, 1 से 5, 5 से अच्छा 15 हो गया है ना। ठीक है बच्चों, जैसे पानी है ना, वाटर के pKa की वैल्यू होती है 15.74। तो ये कैसा एसिड हुआ? वाटर एक्सट्रीमली वीक एसिड हुआ, एक्सट्रीमली वीक एसिड। तो यहाँ लिखा हुआ HCl का -7 है, तो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट्स -7, यू कैन थिंक ऑफ, मतलब इन दोनों में कितना अंतर हुआ? 10 की पावर 22.74 का, इतना अंतर हो गया HCl में और वाटर में। मतलब पानी के तुलना में, अगर HCl की तुलना में पानी को लेके आओगे, पनिया से पूछोगे पनिया इधर आओ तुम एसिड हो, तो शर्मा जाए कि नहीं भैया तनी मनी निकालते हैं, बट नहीं मतलब भूल जाइए उसको आप। ये इतने का अंतर है भाई, कैन थिंक ऑफ, यस, मतलब इतना ज़्यादा। कोई बोला सर 10 की पावर -2 का, मधु बिटिया अंतर 100 का है, 100 कौन ज़्यादा है कम है, मैंने ये नहीं बोला बेटा, है ना। सो इट्स ओके नाउ, सो 10 की पावर 22.74। चलिए नाउ, सो pKa HCl, मतलब आपको समझ में आ गई मेरी सारी बातें। एसिटिक एसिड के pKa की वैल्यू 4.76, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको वैल्यू याद करने के लिए नहीं बोल रहा, वैसे याद अपने आप हो जाता है अगर आप बातों को समझते हो तो। चलिए देखते हैं, इथेन, इसके pKa की वैल्यू है 48, गधा है। कोई पूछे इथेन एसिड है क्या पगला गए हो का? इथेन है ना, C2H6। देखो ऐसे मजे लो, इथीन उससे स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ थोड़ा सा यार, बट सब गधे ही हैं। बेंजीन अनदर गधा बट स्ट्रॉन्गर। एसिटिलीन मतलब देखो ये SC∧CH ये, और इथेन मतलब कुछ समझते जाओ विज्ञान के विद्यार्थियों। इथीन मतलब तुमको यहाँ से क्या समझने को मिल रहा है कि सिंगा अगर sp3 हाइब्रिड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, sp2 होते बढ़ गया, sp होते और बढ़ गया, और यहाँ अंतर देखो कितने का है, देखो sp3 और sp अंतर कितने का हुआ, 10 की पावर 23 का अंतर हुआ इन दोनों में। वाओ, मतलब एसिटिलीन इज 10 की पावर 23 टाइम्स हैव हायर वैल्यू ऑफ Ka देन इथेन। यस, इट्स एक्सपेरिमेंटल, है ना। बात मेरी समझ में आई क्या? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? नाउ ये कौन है? ये इथेनॉल हुआ। लोग शराब वराब पीते हैं उसमें इथेनॉल पीते हैं, मैं आपको ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। इथेनॉल है ना, 16 है, बहुत गंदी चीज़ बट लोग यूज़ करते हैं, भगवान जाने। 16, तो ये इथेनॉल जो है, इथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर एसिटिलीन से ज़्यादा है। वाटर 15.74, HCl 9.2। ओके, तो ये लिटिल बिट आपको चीज़ें समझ आ रही है बच्चों? गुड। आप क्या देख रहे हो? जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हुआ से sp हुआ, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया,
या जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ा है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। ओके, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। और आप देख रहे हो कि सब कुछ सेम है। यहाँ ये sp3 से sp हो गया, इथेन से एसिटिलीन हो गया, तो 10 की पावर 23 का चेंज हुआ। बाप रे बाप, ये पता है मैं कहूँ कि एक आदमी है वो 500 रसगुल्ला खा गया, हैं हमके 1000 खा गया, अरे बाप रे बाप ये कैसे हो गया, हमके 10,000 खा गया, अरे बाप रे बाप हमके 2 लाख खा गया, अरे बाप रे बाप। तो ये सब चीज़ों में आप बाप रे बाप जानते हो क्यों बोल रहे हो? बिकॉज तुम रसगुल्ले और 2 लाख को समझते हो, उससे ज़्यादा भयावह फिगर है 10 की पावर 23, बहुत बड़ा नंबर है। आर यू गेटिंग मी? तो ये 10 की पावर 23 टाइम्स ज़्यादा हो गया वनली बाई चेंजिंग हाइब्रिडाइजेशन, वनली बाई चेंजिंग S कैरेक्टर। ओके, मैं यही कहा था, अगर आप ये चीज़ समझते हो, आपका दिमाग जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो आपको याद हो जाएगा क्या कि S कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर बच्चों? मुझे भरोसा है आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए, ये Ka, Kb, Pk, Pkb आपको याद हो गया, ये भी मैंने बता दिया आपको। नाउ कोई पूछे आपसे कि HCl कैसा एसिड है, यू विल से स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई पूछे आपसे एसिटिक एसिड, विनेगर का सिरका का अचार खाए होगे यार, मेरी बड़की माई गाँव बनाई थी, है ना। यहाँ घर पे तो आजकल नहीं बन रहा, कुछ और अचार मिल जाता है, गांव में बनता है सिरका का अचार, बड़की में बनाई थी। तो विनेगर, राइट, इसका स्मेल भी एक अलग तरह का थोड़ा एसिडिक स्मेल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ चेक योर कॉन्सेप्ट, आपको बताना है। अभी मैं आपको कुछ और समझा दूं, फिर हम उस पर आते हैं। चलिए मैं इसको मिटा के, ऐसा क्यों हुआ कि S कैरेक्टर बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया? चलिए बच्चों, कम ऑन, देखो ये कोई एसिड है Ha, बहुत गौर समझना। एसिड और बेस के सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं, एसिड और बेस के सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये कोई एसिड है। ओके, नाउ तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? एज वी ऑल नो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो कब ये H+ कब ज़्यादा मिलेगा? तो क्या हुआ, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो ये A है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो ये H+ होके बाहर निकल गया। तो हम ये कह देंगे बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ, पहला पॉइंट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। अब A कौन है? A वो है जिससे हाइड्रोजन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, बिना किसी दलाल के, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ओके, तो H जिस एटम से जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। और एक बात तो आपको याद ही होगा यार, क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर, जिसमें S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, जिसमें S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा हो जाएगी, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब ये H इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और H+A- बन जाएगा। या ये कह सकते हो कि अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इट विल बी मोर स्टेबल। अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो A विल स्टेबलाइजेज नेगेटिव चार्ज ओवर इट बिकॉज इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम या लू सटलियस प्रिंसिपल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये टूट जाएगा, H+ मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। इसलिए बच्चों अगर हमसे कोई पूछे कि भैया बताओ CH3 CH2 और ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम लोग तपाक से बोल देंगे कि सब में कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ये sp3 हाइब्रिड है, दिस वन इज sp2 हाइब्रिड एंड दिस वन इज sp हाइब्रिड। एंड वी नो कि sp3 हाइब्रिड कार्बन इज 2.48 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो
Yes, are you getting it? And sp2 is 2.74 electronegative, while sp is 3.27 electronegative. Yes बच्चों, and therefore this one is most acidic followed by this and this, and we know the difference in these two. इन दोनों Ka वैल्यू में 10 की पावर 23 का अंतर है। कहें गुरुजी कैसे मालूम? हम कहे तुम्हें बड़ी मार मारेंगे, अभी टेबल दिखाए थे ना, कहो सर याद करना पड़ेगा। हम कहे बिल्कुल नहीं। क्या फिर टेबल क्यों दिखाया? हम कहे ताकि तुम पचा लो कि अरे यस कैरेक्टर से इतना अंतर आ गया क्या, है ना? समझ में आ गया बच्चों? फटाका बताओ मुझे, फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं। अब सवाल नंबर दूसरा है बच्चों कि HF का एसिडिक कैरेक्टर HCl से कम होता है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वी ऑल नो इट्स 4.0 एंड फॉर क्लोरीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इज 3। ओके सो बच्चों यार बीच में लाइट फाइट कट गया था और पता नहीं आज चुनौतियाँ थोड़ी कहीं मुश्किल हो जाता है, पूरा इधर का पावर ही गुम हो गया है, समझ रहे हो? तो कैसे कैसे करेक्ट किया गया है। तो नाउ ओके कम ऑन। ओके बच्चों, सो मैं क्या कह रहा था, कम ऑन एवरीवन, कि देखो HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। सो अगर सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन करते हैं तो बाई कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, बट इट्स नॉट द केस। ऐसा नहीं है। केस क्या है बच्चों? HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, HCl HF से स्ट्रॉन्गर है। तो मतलब मैंने पहले बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, जिससे कनेक्टेड है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। बट अगर ये सही है तो ये ऐसा होना चाहिए, बट ये होता तो ये है, फिर ऐसा क्यों? तो हम इसको देखते हैं ऐसा क्यों। बच्चों ध्यान समझना बात को आप लोग, देखो ये HA है ना, बहुत ध्यान से देखना। कई बार ज़िंदगी में चीज़ें दो उल्टी उल्टी मूव करती हैं और दोनों से एक ही बात निकल के आता है। ऐसे लोग कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं जो खासकर पढ़ाई को समझते हैं, जीवन को समझते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को समझते हो, क्या कहते हैं कि बहुत प्रेशर नहीं लेना चाहिए, कूल रहो, काम रहो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कभी ना कुछ समय लाइट में बहुत आराम से था, कूल था। और फिर क्या बोलते हैं कि अपने काम को सिंसियरली करो, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब बहुत सीरियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, तो प्रेशर अपने आप आ जाता है और फिर कहते हैं प्रेशर मत लो। अब दोनों का सामंजस्य कैसे बैठा है? सो मेनी टाइम्स थिंग्स मूव इन काउंटर डायरेक्शन। सो बाय द वे मैं इस पर लेक्चर देने वाला नहीं हूँ अभी, बट आई एम जस्ट सेइंग। सो आपको ढूंढना होता है कब किस चीज़ को कैसे प्रायोरिटी दें, कैसे उसको हम समझें। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें उल्टी उल्टी मूव करती हैं, H और A। A का एसिडिक स्ट्रेंथ, A की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात क्या है बच्चों, आपको मालूम है ना कि एसिड बेस के सारे रिएक्शन कहाँ होते हैं? इक्विलिब्रियम में। ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा A-। क्लियर? नाउ अगर इस बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होगी, अगर ये बॉन्ड लंबा होगा तो वीक हो जाएगा, और वीक होगा तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो हमें H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। सो अनदर फैक्टर इज दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, बॉन्ड लेंथ ऑफ HA बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ HA बॉन्ड। इस बॉन्ड की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन इज सेम इन एसिड, सो व्हाट विल बी डिफरेंट? यू नो A। सो A का साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड की लंबाई उतनी ज़्यादा होगी। सो दिस बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ A। तो बच्चों, दोस्तों, मेरे चेलों, देखो A का साइज जितना बड़ा होगा उतना ये बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, बॉन्ड उतना कमज़ोर हो जाएगा और ये टूट के हमको H+ उतना ज़्यादा देगा। एक बात, इलेक्ट्रॉनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उतना ज़्यादा H+ मिलेगा। यहाँ दो बातें हैं। अब देखो अगर HF और HCl की बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग,
तो बॉन्ड लेंथ कहता है कि दिस शुड बी स्ट्रॉन्गर, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ दिस शुड बी स्ट्रॉन्गर, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिटी दिस शुड बी स्ट्रॉन्गर। सो विच वन वी शुड फॉलो, हम किसकी बात माने? लॉकडाउन नहीं था तब बच्चे कई बार घर गए ना, यहाँ पढ़ रहे थे तो घर चले गए, घर गए तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि क्यों आ गए हो, क्या चाहिए? जो चाहिए हम पहुँचा देते, पैसा चाहिए, मिठाई चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? या तो पापा कह रहे हैं अच्छा आ गए हो तो कब जाओगे? मम्मी गुस्सा आती है, माता जी कहेंगे अरे ये तो अभी आया है या आई है और आप जो कह रहे हैं कब जाएगा, कि बटुआ 2-3 दिन और रुका। दोनों ही तुम्हें चाहते हैं, पिताजी तुम्हारे भविष्य को लेके और माँ दुलार प्यार को लेकर के। आई मीन यू नो, सो इन दोनों के बीच में आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है ना। बच्चे जाके मम्मी से गले मिल जाते हैं कि मम्मी रुक जाते हैं, आके पिताजी अपना प्रायोरिटी दिखाए तो धमक भी देते हैं। बाय द वे, तो कई बार चीज़ें क्रॉस होती हैं और हमें उसको देखना पड़ता है कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। बच्चों ये दो बातें हैं, दोनों यहाँ पे उल्टी उल्टी हो गई हैं, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। चलिए इसको समझते हैं हम लोग क्या करेंगे, कब इसको ध्यान देंगे। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं बच्चों, बहुत ध्यान समझना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शार्पली इंक्रीज करती है, तेज़ी से शार्पली इंक्रीज करती है। ओके, और जब हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं तो साइज शार्पली इंक्रीज करता है। शार्पली मीन्स तेज़ी से इंक्रीज करता है। ओके, सो एम आई क्लियर नाउ? क्या मैं क्लियर हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जब सेम पीरियड में होते हैं, सब लोग नोट कर लो ध्यान से, जब वो सेम पीरियड में होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन जो है डोमिनेटिंग होता है, बहुत तेज। इधर देखो आप, मेटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, और यहाँ मतलब ग्रुप नंबर 1, 2 ये सब मेटल हो गए। इधर ग्रुप नंबर 16, 17 क्या हो गए? नॉन मेटल, बहुत तगड़े वाले नॉन मेटल। और इधर नीचे आने बच्चों नया नया ऑर्बिटल जुड़ जाता है, नया नया शेल जुड़ जाता है, तो साइज बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। यस, वाओ, ग्रेट। तो आप समझ गए मेरी बात को कि अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, नोट कर लो बच्चों, अगर सेम पीरियड्स के एलिमेंट्स होंगे जिनसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो फॉलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे तो अगर वो ग्रुप में नीचे आ रहे हैं ना तो फॉलो बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ द एटम। क्लियर? वाओ, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया मुझे तो। चलिए, इसीलिए बच्चों अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था ये वाला CH3 और CH3 वाला, और ये CH2 वाला, और ये HC और ट्रिपल बॉन्ड CH वाला, ये तीनों ही देखो कार्बन एटम है। कार्बन है तो एटम सेम है ये, तो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर रहे थे। हमने कहा था कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, बट इन केस ऑफ बच्चों HF और HCl जो हम लोग देख रहे थे, तो फ्लोरीन और क्लोरीन सेम पीरियड के नहीं हैं, ये डाउन द ग्रुप आते हैं, ये सेम पीरियड के नहीं हैं। तो यहाँ हम लोग साइज देखेंगे, HCl का साइज जो है HF से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, गुड। आप लोग सारी बातें समझ में आ रही हैं तो यस यस बोलते रहना, तो मैं समझता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। कम ऑन, आप लोग ट्राई करो अभी जो पढ़ाया उसके ऊपर फटाफट बच्चों। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज, pKa के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। आपको पहले देखना है कि वो हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच है वो सेम पीरियड के हैं या सेम ग्रुप के हैं। फिर ये pKa क्या कहता है और उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर अरेंज करना है। जस्ट डू, कम ऑन एवरीवन, एंड टाइम इज 60 सेकेंड्स, इट्स मच मोर, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है। सो जस्ट डू इट एवरीवन, कम ऑन, टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। आपको देखना है कि हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो सेम पीरियड का है, ग्रुप का है। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ pKa वैल्यू एंड देन अरेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कम ऑन एवरीवन। वाओ, आंसर आने लगे, नितेश जी ने दे दिया।
अमित, विश्वजीत, बहुत अच्छे, सोहेब, अहमद, अदिति, रचना, बहुत अच्छे, कम ऑन एवरीवन। लास्ट 10 सेकेंड्स। वाओ, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम इज ओवर। सो लेट्स डिस्कस इट। बहुत बढ़िया ट्राई मारे हो आप लोग, गजब यार। मैं फिर से आह्लादित हो जाता हूँ। आई जस्ट बिकम ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पॉन्स, बाय योर लव, अफेक्शन एंड प्रेज यू हैव गिवन टू मी। ग्रेट, कम ऑन, ऐसे सीखते रहो और तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी तो होना ही है ना। मतलब क्या, मैंने एक कोड पढ़ा था अपने स्कूल के मल्टीपर्पज़ हॉल में, लिखा हुआ था वहाँ, एक बड़ा अच्छा कोड लिखा था कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं ईश्वर उसकी मदद करता है, और जो नहीं करते उनकी मदद ईश्वर भी नहीं करता है। नहीं तो आप लोग तो इतना अच्छा कर रहे हो, ईश्वर को मदद करना पड़ेगा आपकी। कमान बच्चों, देखिए HF अमोनिया थी बच्चों, फ्लोरीन, nitrogen and carbon, these all belongs to same period, so we will just see by value of electronegativity. Just first arrange HF, ammonia and acetylene. So if they belong to the same period, they all belong to second period. Yes, they all belong to second period. So electronegativity of fluorine is it's a 4.0, we all know. Electronegativity of nitrogen is it's a 3.0, we know. अब carbon sp hybrid is 3.27. I have just taught you before, you know. So from here we know electronegativity value की बात करना है तो हमको क्या बोलना बच्चों, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू। सबसे पहले उसको लिखना है जिसके pK की वैल्यू कम हो, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो कम होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज HF, HF मीन्स A सबसे ज़्यादा। फिर किसको लिखेंगे हम लोग, उसके बाद दिस वन D, देन कौन होगा बच्चों, ये अमोनिया B। नाउ A सबसे स्ट्रॉन्गर है इन सब में। नाउ लेट्स डिस्कस HCl। हम देख रहे हैं बच्चों HF और HCl में, HF और HCl ये सेम पीरियड के नहीं हैं। HCl डाउन द ग्रुप है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा जरूर होगा, तो इसके pK की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। तो pK सबसे कम किसका होगा, C का हो जाएगा। यस बच्चों समझ गए, सबसे कम C का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, pK सबसे कम, फिर A का, फिर D का एंड B का। ओके तो CADB, CA किसी ने CABD कर दिया है, पर ठीक है। आप लोग समझ गए कि नहीं हमको ये बताओ। फिर कह रहा याद करना है, कहाँ याद करना है बेटुआ, तुमको हर चीज़ मैंने pK वैल्यू भी नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना, आपको समझाया मैंने। हाँ ये एसिडिक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ का तो पता होना चाहिए, मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ाया था। समझ आ गया, बोलो पहले यस नो। गुड। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया। वाओ, आप लोग समझ गए यार, ग्रेट, गुड। चलो कुछ लोग कह रहे हैं सर एक बार और समझा दीजिए, बड़े ध्यान से एक बार सुन लो कि भैया HF अमोनिया और एसिटिलीन all belongs to second period, so we have to compare their values by electronegativity value, okay, their acidic strength by electronegativity value. What we are seeing here बच्चों कि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, so स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉलोड बाई एसिटिलीन 3.27। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत सिंपल वाली है भाई, मैं सबका नहीं याद करवा रहा हूँ। और कार्बन केस में हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया हुआ है, वैल्यू याद कराया है। सो याद क्या, मैं उसको इन्वॉल्व कराया था आपको। तो नाउ फिर अमोनिया एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज HCl बिकॉज ये HF के नीचे है। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम्स इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। इन हाइड्रोजन एटम, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को दिए हुए हैं, हाइड्रोजन C, हाइड्रोजन D, हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B। इन सारे हाइड्रोजन को
एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ओके, कम ऑन एवरीवन, थिंक, यूज ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड टाइम इज ऑब्वियसली 1 मिनट 60 सेकेंड्स। ऐसे सवाल आजकल परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं। तुम देखे मैंने हाइब्रिडाइजेशन से कैसे मैं ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ गया। यस, कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन कम ऑन, सोच के आंसर करना है, सारी बातों को सोच करके। कुछ करिए, कुछ करिए, जल्दी करिए। आजकल इट्स ए न्यू ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, न्यू फ्लेवर ऑफ क्वेश्चन। आजकल ऐसे सवाल एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं। वाओ, आप लोग तो बढ़िया आंसर कर रहे हो यार। गुड, लास्ट 10 सेकेंड्स। 9 8 7 6 5, कम ऑन एवरीवन। 3 2 1 0, टाइम इज ओवर। नाउ लेट्स सी, देखते हैं हम लोग इसको कि आपने कितना सही किया, क्या सोचा। कम ऑन, देखो हाइड्रोजन अटैच है, सभी सेकेंड पीरियड वाले हैं। ऑक्सीजन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये कार्बन इज सेकेंड पीरियड, कार्बन इज सेकेंड पीरियड, नाइट्रोजन इज सेकेंड पीरियड। सो वी हैव जस्ट यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट्स। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया। मैं आप कोशिश का मैं कायल हो गया हूँ। वाह, सी, कार्बन sp3 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन 2.48, ऑक्सीजन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन इज 3.0 एंड कार्बन sp इज 3.27। सो एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसको लिखो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो। ओके, तो सबसे कम किसका होगा? 2.48, मतलब डी वाले कम हो जाएगा। देन 3.0 बी वाले का हो जाएगा, देन सी का हो जाएगा एंड फाइनली ए का हो जाएगा। डी बी सी ए, तालियां। कुछ लोगों ने बी सी सी बी, निशांत शर्मा जी जो है सी बी कर दिए। बेटा देखो हम लोग क्या चेक करेंगे, गलती हुआ ऐसे दुखित नहीं होना, बस सीखना है। दुखित का कोई जगह नहीं है। नाग सर की क्लास में देर इज़ नो स्कोप ऑफ सैडनेस, सिर्फ सीखना है और खुश होना है। बना लिए तो बना खुश हो गए, नहीं तो सीख के खुश हो गए। देखो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे कम है कार्बन की, तो सबसे डी वीक हो जाएगा। उसके बाद बी वाले में 3.0 उससे ज़्यादा, फिर 3.27 उससे ज़्यादा सी, और सबसे ज़्यादा 3.5 ए का हो गया। ठीक है, गुड। नाउ कंजुगेट एसिड बेस थियरी। चलिए कुछ कुछ चीज़ें हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है आए क्वेश्चंस के लिए। ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, मज़ा आ रहा है, एनर्जी बनी हुई है। सही है ना सर? ओके, क्लियर है, क्लियर है, गुड, बढ़िया। ओके, सी बच्चों, कंजुगेट एसिड बेस थियरी। अगर ये थियरी क्या कहता है कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, बहुत ध्यान समझना आप लोग। अगर मैं कोई एसिड लिखता हूँ ऐसे HA, और ये मैंने रिएक्शन किया और ये हो गया H प्लस प्लस A-। ओके, तो ये देखो मैंने आपको अभी भी बताया था कि HA इज एसिड बिकॉज ये H प्लस दे रहा है, और A- इज अ बेस बिकॉज ये H प्लस ले रहा है। A- is H प्लस एक्सेप्टर। सो दिस टू आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कौन कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है डिपेंड करता है कितना H प्लस दे रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, H प्लस दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, तो क्योंकि A- की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर A- स्टेबल है तो ये H प्लस लेना नहीं चाहेगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसका बेस कैसा होगा? वीक होगा। फिर सुनो ध्यान से, HA स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये H प्लस ज़्यादा देना चाहता है, मतलब जो A- बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नाउ इफ A- इज वेरी स्टेबल, सो इट विल नॉट हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद H प्लस, इट विल नॉट कंज्यूम H प्लस, इट विल नॉट टेम्प्ट टू अट्रैक्ट H प्लस। यस, ये H प्लस को नहीं एक्सेप्ट करेगा, कम एक्सेप्ट करेगा, तो वीकर बेस हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस वीक होगा और
वीकर एसिड का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। इसी बात को समझने के लिए एक मैंने बताया था आपको कि फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर Ka इंटू Kb की वैल्यू कांस्टेंट होती है एट अ गिवन टेम्परेचर। इसकी वैल्यू को हम बोलते हैं Kw के बराबर। किस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर का। मैंने ये सब बातें आपसे पहले किया हुआ है। तो अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Kb की वैल्यू कम होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक बेस हो जाएगा, या वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। तो कई बार हमको जब स्ट्रॉन्ग बताना होता है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम सब कंजुगेट बेस देखते हैं। कंजुगेट बेस अगर वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, या इसका उल्टा। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड स्ट्रॉन्ग तो बेस वीक, एसिड वीक तो बेस स्ट्रॉन्ग, या इसका उल्टा। मैथमेटिकली हियर इज द एक्सप्लेनेशन और थियोरेटिकली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी। सो लिसन नाउ। जैसे आपसे कोई पूछे कि F माइनस और Br माइनस में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन। हाँ, F माइनस, तो हम इसका कंजुगेट एसिड बनाएंगे HF एंड हियर HBr। सो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, वी नो कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सो HBr विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड एंड देयरफॉर Br माइनस विल बी वीकर बेस। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर हमको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है, अगर हमको पता है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमको पता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वी कैन डेराइव, वी कैन कैलकुलेट, जिसको उल्टा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अरे अमित जी, अमित, अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई पागल आ गया है पे गाली फाई लिख रहा है यार, उसको इसका नंबर निकाल के पुलिस को कंप्लेन भी किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। इसको एक तो बच्चों प्रभावित नहीं होना तुम लोग, ठीक है। ये किसी कोचिंग का एजेंट होगा, समझ रहे हो ना। ये चाहता होगा कि तुम लोगों को डिस्टर्ब किया जाए पढ़ाई को, तो ये अपना यहाँ आ गया पता नहीं कैसे। इसका नंबर निकाल के पुलिस को कंप्लेन करते हैं इसको। हाँ, इसका नंबर निकालो और पुलिस को कंप्लेन FIR करते हैं। तो बाय द वे, इसका नाम नोट कर लो, शिवम खरवार है। इसके पापा मम्मी को बुलाओ यहीं पर, है ना, या किसी कोचिंग का एजेंट भी हो सकता है ये। चलो बच्चों, कोई बात नहीं यार, स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर निकालो इसका, सारा डिटेल। ओके, कम ऑन। हाँ, ये मैं GOC का अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, नो इशू, करते हैं अभी। तो ये क्या हुआ अभी बेटा, जिसने भी इसना कोई शिवम खरवार, एक बड़ा सज्जन पागल टाइप लड़का है, इसने कुछ गाली वाली लिख रहा है यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गालियाँ तो रैंडम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। तो इसके पापा मम्मी को बुलाते हैं और यहाँ के DM साहब मेरे भाई जान पहचान के ही हैं, FIR दर्ज कराते हैं और इसको यहीं बुलाते हैं, तो मालूम चलेगा। ये स्क्रीनशॉट भी हमने ले लिया है और वैसे भी रिकॉर्ड में रहेगा। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग में से कोई और ऐसी हरकत ना करे। और ऐसा करके आप बता रहे हो कि आपके घर वाले ने आपको क्या सिखाया है, वो ऐसे अच्छे होंगे, माता पिता सबके अच्छे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया है ये पता नहीं। कोई गाली कैसे लिख सकता है यार, पता नहीं, डोंट नो। भाई मैं ख़राब पढ़ा सकता हूँ, बहुत ख़राब पढ़ा सकता हूँ, लेकिन गाली कैसे लिख सकता है। ये ऐप पर ही कोई बच्चा है, ये किसी कोचिंग से आया होगा। चलिए कम ऑन। तो मैं अब क्या बता रहा था कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का और ज़्यादा यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे? एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को हम लोग उल्टा कर देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, है ना, कंजुगेट बेस का आ जाएगा। तो बच्चों, अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। राइट, बात समझ गए आप लोग। ओके, तो जैसे मान लो हमसे कोई कहे कि बताइए CH3O माइनस और Br माइनस में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, और अब पता नहीं चल पा रहा हमको। सो वी शुड नॉट मच वरीड अबाउट दैट। हम क्या करेंगे, हम लोग इसका कंजुगेट एसिड बनाएंगे CH3OH और ये बनाएंगे HBr। HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, वी ऑल नो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये HCl से भी स्ट्रॉन्ग है। ओके,
एंड देयरफॉर इट विल बी स्ट्रॉन्गर बेस, मतलब Br माइनस विल बी वीकर बेस। क्लियर? यस। चलिए GOC का बेटा मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। नाउ ये क्वेश्चन ट्राई करो इसी। अच्छा एक छोटी सी और बात है, एक छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको और दे देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सभी लोग समझ लें इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वही रूल करता है, वीक वाले को कंप्रोमाइज़ करना होता है पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, एवरीवेयर। सो इसलिए कहते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों को ताकतवर होना पड़ेगा। वी हैव टू बी, सो दैट कि जैसे अभी मैं यही बात कर रहा हूँ, ऐसे गंवार लोग जो होते हैं इन लोगों को पनिश किया जाए ताकि बाकी बच्चों को सही मैसेज जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास दो एसिड हैं HA और HB, और मान लो HB इज स्ट्रॉन्गर एसिड है, मान लो HB स्ट्रॉन्गर एसिड है, और दोनों को एक साथ ले लिया जाए, दोनों का सॉल्यूशन मिला लिया जाए और उसमें कोई बेस लिया जाए, बेस से ट्रीट किया जाए, और बेस कम मात्रा में है, लिमिटेड मात्रा में है, बेस लिमिटेड मात्रा में है, और वी कैन से कि बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, इन दैट केस अगर दो एसिड लिया जाए, टाइम हो गया, अगर दो एसिड लिया जाए HA और HB और इसको किसी बेस से रिएक्ट करते हैं हम लोग, एंड यू नो HB इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HA। ओके, तो अगर बेस कम होगा तो बेस से कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा, कौन सा जो स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड विल रिएक्ट्स विद बेस। ओके, इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन, HB। वीकर वाला बेचारा सॉल्यूशन में वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा, और जो स्ट्रॉन्गर वाला है वो सॉल्यूशन में टूट जाएगा, बनेगा H प्लस प्लस B माइनस A बनेगा, और ये H प्लस NaOH से रिएक्ट करेगा, बनाएगा H2O प्लस Na प्लस और ये B माइनस। समझ गए आप लोग? तो मैंने क्या बोला, अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में HA और HB दो एसिड लेते हैं, उसको किसी बेस से ट्रीट किया, बेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, देन व्हाट विल हैपन, पहले स्ट्रॉन्गर एसिड रिएक्ट करेगा फिर वीकर एसिड, राइट। बट अगर बेस हम लिमिटेड मात्रा में लेते हैं, इन दैट केस जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो अपना सॉल्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड अपना सॉल्ट बनाएगा। ये क्या है बच्चों, सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट। ये किसका सॉल्ट है, B माइनस मतलब HB एसिड का। HB कौन एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर इफ वी हैव मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड वी जस्ट यूज बेस इन लिमिटेड अमाउंट, then stronger acid will form its salt and weaker acid will remains as such in the solution. Okay, so अगर ये HB है तो HB stronger acid अपना सॉल्ट बना लिया। क्लियर? दूसरी बात सुनो, अगर मेरे पास, मैंने क्या बोला अभी कि HA की तुलना में HB इज स्ट्रॉन्गर एसिड। दूसरी बात मैंने क्या बता कि स्ट्रॉन्गर वाला सॉल्ट बनाता है, स्ट्रॉन्गर वाला रिएक्ट करता है। अगर वीक वाले ने अपना सॉल्ट बना भी लिया रो गा करके, या पहले से मेरे पास वीक वाले का सॉल्ट है और उसको उससे स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करोगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपना सॉल्ट बनाएगा और वीक वाले को बाहर निकाल देगा। मतलब अगर मेरे पास वीक वाले का सॉल्ट है, मतलब Na प्लस A माइनस है, इट इज सॉल्ट ऑफ HA, और इसको मैं स्ट्रॉन्ग एसिड HB में मिलाता हूँ, ये कहेगा अरे तुम कैसे सॉल्ट बनाए यार, तुम कैसे बना सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड जो है बच्चों, ये टूट जाएगा और टूट के देगा H प्लस प्लस B माइनस, और ये H प्लस इसको मिल जाएगा, HA बन जाएगा, वीकर एसिड को बाहर निकाल देगा और स्ट्रॉन्गर एसिड अपना सॉल्ट बनाएगा। क्लियर? इफ़ यू हैव द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, मेरे पास वीक एसिड का सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट करने पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है और वीक एसिड बाहर निकल जाता है। क्लियर? दो बातें बताई मैंने आपको कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो अपना सॉल्ट बनाएगा। बात नंबर 2, अगर वीक एसिड का सॉल्ट होगा भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड में डालोगे अगर तो उसको बाहर निकाल देगा। क्लियर? ये एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, आप सभी लोगों के लिए। बड़ा अच्छा सीख रहे हो आप लोग, मज़ा आ रहा है, वाह, अरे यार गजब।
बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, कोई ये ध्रुव जी बोल रहे हैं कि सर शिवम कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसका अकाउंट गलत यूज़ कर रहा हो और गालियाँ लिख रहा हो। तो ये तो शिवम ही बताएगा ना यार। हम शिवम के मम्मी पापा को यहाँ बुलाएंगे अभी FIR करके, वो आएंगे और बताएंगे। ये तो जांच पड़ताल मालूम चलेगा ना। और अपना अकाउंट किसी और को शेयर करोगे बताओ? अपना अकाउंट आप अपने घर में आप ड्रग रखवा दो और कहो से मैं नहीं रखा, कोई और रखा, पकड़ाओगे तो आप ही ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते बेटा। और शिवम के पेरेंट्स को आना पड़ेगा यहाँ पर। अभी मैं FIR करवाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि ये कोई मजाक बात नहीं है कि आप ऑनलाइन गालियाँ लिख रहे हो, ये नहीं चलेगा। नो 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 नो। ऑनलाइन पता है, अगर ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ भी कर लेगा तो भी रजिस्टर्ड तो होगा ही ना। तो ये नहीं कर सकती। तो मतलब कितनी कम बुद्धि है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मतलब इससे घर जाके पुलिस पकड़ सकती है उसको। ऐसा कैसे कर सकता है? इससे कम बुद्धि का खतरनाक प्रमाण है। समझ रहे हो? मतलब ऑनलाइन कोई गाली कैसे कर सकता है यार, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कोई और यूज़ कर रहा है, अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है, तो ये गलती आपकी भी तो है। आप ही तो बताओगे किसको दिए थे, क्यों दिए थे। ले कमान, इससे बातें नहीं करना हम लोगों को, सिर्फ पढ़ाई फोकस करना है, सवाल बनाना है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही शानदार। आज का आखिरी 1 मिनट में इसको ट्रीट करना है। NaNH2 1 मोल लिया गया, P बना, फिर NaNH2 1 मोल लिया गया, फिर NaNH2 1 मोल लिया गया, राइट। एक्चुअली मैं नाराज़ इससे हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अलग से गाली लिख के व्हाट्सअप कर देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मेरी बहनें हैं, और उसमें कोई गाली लिखे है बताओ, तो ये गलत है ना। ये इतने सारे बच्चों के टाइम को वेस्ट करना है, उसको बियर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल के पीछे भेजना चाहिए, सलाखों के पीछे, जेल में मतलब। चलिए कमान, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कमान यहाँ आ जाओ, इसको सॉल्व करो। टाइम है आपके पास 120 सेकंड का। 120 सेकंड में ट्राई करो, अपना दिमाग यूज करो, जैसे भी आप कर सकते हो। कमान, जल्दी जल्दी बच्चों। आपको बस यही सोचना है कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। जो स्ट्रॉन्गर है पहले वो, आजकल IIT में और नीट में खूब सवाल इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं। सबको आंसर करना है बच्चों। कहाँ चला गया यार? एक मिनट और है। Last 30 seconds. Come on, everyone. फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम इज़ ओवर। और आप सभी लोगों ने कोशिश किया है, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड, है ना। चलिए मैं भी डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो आज पढ़ाया आपको समझ में भी आया होगा सारी चीज़ें, और उसको फॉलो करना है। ये सब गाली फाली वाली बातें तो क्या है यार, मुझे कितनी भी गालियाँ कोई दे दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरे काम करने का तरीका थोड़ा ख़राब अच्छा हो सकता है, मैं उतना स्किलफुल हो सकता ना हूँ, बट मैं जितनी भी स्किल है पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बस मेरा एक ही सपना है कि अपने बच्चों को IITian डॉक्टर बनाऊँ किसी भी तरह से। उसके लिए गाली खाना पड़े, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग इसमें प्लीज़ डाइवर्ट ना होइएगा। हाँ, लेकिन आप लोग खुद ऐसी कोई हरकत ना करिएगा, क्योंकि तब बड़ा आप लोग करोगे, फिर आपके पेरेंट्स आएंगे, मुझे हर्ट होगा देख करके, ये वही बच्चा है क्या, तो ऐसा नहीं करना है। ओके,
कम ऑन, यहाँ देखो NaNH2 1 मोल हमने लिया बच्चों। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? OH वाला। ये रिएक्ट करेगा, एक ही मोल लिया है तो जानते हैं क्या होगा, ये बन जाएगा O- और ये Na+ और ये ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा हो गया। ठीक, दोबारा फिर ट्रीट करेंगे। तो ये किसका सॉल्ट है बच्चों? ये अमोनिया का सॉल्ट है। तो अमोनिया से देखो ये एसिटिलीन स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, अब ये रिएक्ट कर जाएगा, है ना, इसका H+ चला जाएगा और ये बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर था OS, पहले वो रिएक्ट किया, फिर ये हो जाएगा C≡C-, ये सॉल्ट बना। अब फिर तीसरा ये किसका सॉल्ट है बच्चों? अगेन अमोनिया का सॉल्ट है। अमोनिया से स्ट्रॉन्गर एसिड इनमें अब कोई नहीं बचा, तो R वाले में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है सीखने के लिए, इससे अच्छा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। इसमें अच्छी बात सबसे पहले क्या है, जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है वो रिएक्ट किया, दूसरा फिर ये रिएक्ट किया जिसकी बात आता है, तीसरा हमने देखा कि अब इसमें जो एसिड है ये वाला है, इसमें इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कितनी बच्चों? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी 2.74 है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है अमोनिया से कम होता है जो कि 3.0 है, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होगा। ये सॉल्ट जो है अमोनिया का है। समझ गए आप लोग? बोलो यस नो। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बच्चों एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन Ka, pKa, Kb, pKb, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कंजुगेट एसिड बेस थियरी और बहुत सारी चीज़ का क्वेश्चन ट्राई किया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।